آیت نمبر 84 سورہ ہود ہماری چل رہی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ یعنی ناپ تول میں کمی یہ بھی حرام کاموں میں سے اور بڑے جرائم میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ تو یعنی ایسے لوگوں پر مصیبتیں اور تنگیاں آتی ہیں جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک معقول منافع لو، تول میں کمی کر کے پیسے مت کماؤ۔ اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں، یعنی میں ہر وقت تمہیں دیکھ نہیں سکتا، تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا بھی دیا جا رہا ہے۔ آج تک یہی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ اگر کوئی نمازی شخص کسی کو کوئی نصیحت کر بیٹھے تو لوگ پلٹ کر اس کو نمازوں کے تانے دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرو، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دخل اندازی شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ یعنی تانا تشنی، طرح طرح کی تکلیفیں وہ ان کو دینے لگے، کیونکہ وہ تو ایک تقلیدی ایمان کے قائل تھے، تقلیدی روایات کے قائل تھے۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارے شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی جب انہوں نے اس پر الزام تراشی کی تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اے برادران کو، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ گاروں سے بھی محبت رکھتا ہے، اس لیے ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ 3 دفعہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قالوا یا شعیب ما نفقت کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کب کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی برادری سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، خاندان، برادری، لوگ، معاشرہ، دباؤ، وقت، فیشن، چلن، تمہیں برادری کا تو خوف کیا، اللہ کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्म भरा हूँ। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शोएब और इसके साथी मोमिनों को बचा लिया। जिन लोगों ने जुल्म किया था इनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां बसे ही ना थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और अस्तगफिरुल्लाह। और मूसा को हमने अपनी निशानियां और खुली खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और इसके अहियाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर इन्होंने फिरौन की पैरवी हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ते पर न था। क़यामत के रोज़ वो अपने कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में इन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। कैसी अजीब बात है कि फिरौन मुजरिमों का पेशवा है और आसिया जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। कैसी बदतरीन जाए वरूद है जिस पर कोई पहुंचे, और इन लोगों पर ऊपर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है जो ये जिस किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अभी खड़ी हैं, यानी इनके आसार कदीमा मौजूद हैं, और बाज की फसल कट चुकी है। हमने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने आप ही अपने आप पर जुल्म किया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आ सके और इन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा इन्हें कुछ फ़ायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर इसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। फिलवाक़या इसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे। क़यामत का दिन कैसा है? जिसमें सब लोग जमा होंगे। और फिर जो कुछ भी होगा इस रोज़ होगा जिसकी आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर रहे, यानी क़यामत का दिन करीब ही है। बस एक गिनी चुनी मुद्दत इसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल न होगी, इल्ला ये कि अल्लाह की इजाज़त से कुछ अर्ज़ करे। फिर कुछ लोग इस रोज़ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, जहाँ गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुनकारे मारेंगे, और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन व आसमान कायम है। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन और आसमान कायम रहें। इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बस ऐसी बख्शिश इन लोगों को मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा। अगरचे दूसरी आयत में हमेशा खालिदीन फीहा का जिक्र आया, और यहाँ पर जब तक तेरा रब चाहे, तो इससे मुराद ये भी है कि कुछ लोग जहन्नम से कुछ अरसे के बाद निकाल लिए जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक कौम होगी जो जहन्नुम में इस वक्त तक रहेगी जब तक अल्लाह की मशीयत होगी। फिर अल्लाह को इन पर रहम आएगा और वो इन्हें जहन्नुम से निकाल लेगा। तो ये लोग जन्नत के करीबी हिस्से में होंगे। फिर वो अल हयावान नामी एक नहर में गुसल करेंगे। अहले जन्नत इन्हें जहन्नमियून कहकर पुकारा करेंगे। अगर इनमें से कोई एक शख्स सारी दुनिया के लोगों की दावत करना चाहे तो इनके लिए बिस्तरों का भी इंतज़ाम कर लेगा, खाने पीने का भी इंतज़ाम कर लेगा और इनके लिए रज़ाइयों को भी मुहैया कर लेगा। गालिबन रावी ने यह भी कहा कि अगर इन सब की शादी करना चाहे तो ये भी कर लेगा और उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। यानी ये इन लोगों का इनाम है जो एक लामतनाई मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक जहन्नुम में रहने के बाद जन्नत में जाएंगे, और इनको जो कुछ मिलेगा इनके पास इतना होगा कि पूरी ज़मीन के लोगों को अगर खिलाना पिलाना सिलाना चाहें, शादी करना चाहें, तो सब कुछ इनके पास मौजूद होगा। ऐसी बड़ी बड़ी बादशाह सल्तनत और मुल्क लोगों को अता किया जाएगा जन्नत में। फला तकुफ़ी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउलाई मा याबुदूना इल्ला कमा याबुदु आबाउहुम मिन कब्ल। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहें जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फ़कीर बने हुए इसी को पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह हम पहले इनके बाप दादा किया करते थे। यानी इनका दीन रस्मी और तकलीदी था, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे, बाज बगैर इसके कि इनमें कोई कसर काट हो। ये हम इनसे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और इसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो कर दी गई होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कब का फैसला चुका दिया गया होता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान और सब्र दिलाने के लिए ये बात कही जा रही है। ये वाकया है कि ये लोग इसकी तरफ से शक और खिलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाकया है कि तेरा रब इन्हें इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे कर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफर और बगावत से ईमान और अतात की तरफ पलट आए हैं,
ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हद से तजावुज़ ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। तुम इन जालिमों की तरफ ज़रा ना झुकना, वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई वली और सरप्रस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर। कौन से सिरे? फजर और मगरिब। और कुछ रात गुजरने पर इशा पढ़ो। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद करने वाले हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए तो इंसान सदका करे, इस्तगफार करे। इसी तरह नमाज भी गुनाहों को धोती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो बुराइयों का करने के बाद नेकियां करता है, इस आदमी की तरह है जिस पर ऐसी तंग ज़रा हो जिसने इसका गला घोंट रखा हो। ऐसा आदमी जब नेकी करता है तो एक कड़ा टूट जाता है, फिर वो दूसरी कर नेकी करता है तो दूसरा कड़ा टूट जाता है, यहाँ तक कि वो ज़रा टूट टूट कर ज़मीन पर गिर जाती है। सिलसिलातुल सहीह और मुस्नद अहमद दोनों में ये हदीस मौजूद है। तो गुनाह जो है वो इंसान के सीने को भींच लेते हैं, दिल पर बोझ डालते हैं। और जब इंसान सदका करता है, इस्तगफार करता है, नेकियां करता है, नमाज पढ़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दिल का बोझ कम हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो जिक्र की कसरत करे और नमाज की कसरत करे। बस फिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन। और सब्र कीजिए, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। फिर क्यों ना इन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया। अल्लाह ताला किस चीज़ का मुतालबा करे? ऐसे लोगों के वजूद की ज़रूरत बता रहे हैं जो लोगों को फसाद से रोकें, जो ज़मीन से फसाद ख़त्म करें। फिर क्यों ना इन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फसाद करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, यानी सारे पैगम्बरों के मानने वालों में बहुत कलील तादाद ऐसी थी जिनको हमने इन कौमों में बचा लिया। वरना जालिम लोग तो इन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान इन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि इनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहे, और बेराह रबियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। इसी आज़ादी, इंतखाब और इख्तियार के लिए ही तो इसने इन्हें पैदा किया था। और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो इन्होंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन और इन सब से भर दूंगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला, और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते तो इनसे कह दो कि तुम अपने रब पर काम करते रहो, तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। अंजाम कार का तुम भी इंतज़ार करो और हम भी मुंतज़िर हैं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, और सारे मामला मामला इसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इसकी बंदगी करो और इसी पर भरोसा रखो। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो रब इससे बेखबर नहीं है। वमा रब्बु का बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तो यहाँ पर हमारी सूरह हूद कंप्लीट हुई। सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। कुरान पाक की सबसे खूबसूरत सूरह यूसुफ है। इसके अंदर पूरा एक वाक़या बयान कर दिया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। बाकी तो पैगंबरों के वाक़यात आपको थोड़े थोड़े कुरान पाक में मिलते रहेंगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा का पूरा एक ही सूरत के अंदर और यहीं पे मौजूद है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयत हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इसे नाजिल किया कुरान बनाकर अरबी ज़बान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराया में वाक़यात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। यहूद के कहने पर मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में सवाल किया, क्योंकि अरबों के यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात नहीं पाई जाती थी और इनके बारे में इल्म या इनकी तफसील सिर्फ अहले किताब को मालूम थी। अब वो ये चेक करना चाहते थे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं या नहीं। तो इनके सवाल करने की देर थी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने वही के ज़रिए पूरे वाक़े को एक ही बार में मुसलसल पूरा बयान कर दिया, और ना सिर्फ ये कि बयान किया बल्कि इसके अंदर की कहानी को खुद इन लोगों पर पूरा चश्मा कर दिया कि जो कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया, तुम भी आज अपने साथी के साथ यानी अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही मामला कर रहे हो।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنا پر نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی نبوت کو۔ وہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے اور ہمیں کیوں نہ چنا گیا، یعنی ہمیں نبوت کیوں نہ دی گئی، انہیں کیوں چنا گیا۔ تو حسد جو ہے وہ بعض اوقات اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ ابو جہل خاص طور پر اس حسد میں مبتلا تھا، اور اس کا نام ابو الحکم، یعنی بہت سمجھدار انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن جب سے زیادہ حماقت پر اتر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حسد کا شکار ہو گیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے ابو جہل نے بہت زیادہ حماقت کرنا شروع کی تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعنی ان کے والد کون تھے اس وقت کے؟ نبی یعقوب علیہ السلام۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں ان کے والد نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اور نہ وہ تیرے در پہ، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے۔ خواب ہماری زندگی میں بہرحال بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم اپنی پسند کے خواب نہیں دیکھ سکتے، اور ناپسندیدہ خوابوں سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے، اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ غمگین کرنے والا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو حدیث کی وضاحت کرتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے، اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی چیز دیکھیں آپ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ غمگین کرنے والا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا خدا نخواستہ آپ اپنے آپ کو برہنہ یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پورا دن بے چین رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لینی چاہیے، یعنی 3 بار بائیں طرف دھتکار دینا چاہیے، اور دعا پڑھ لینی چاہیے اس کے بارے میں۔ اور تیسرے قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں، یعنی آپ جن دنوں جن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں بار بار، مثلا آپ نے کہیں پیپر دینے جانا ہے تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں پیپر دینے جا رہی ہوں، میں لیٹ ہو گئی ہوں، یا میں ٹائم سے پہلے پہنچ گئی ہوں، یا مجھے پیپر نہیں آ رہا، یا میں پیپر دے چکی ہوں، یا میرا پیپر رہ گیا ہے، یا اسی طرح رزلٹ آ رہا تو رزلٹ کے بارے میں۔ تو جو چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہی ہوتی ہیں وہی آتی ہیں۔ اس کو حدیث نفس بھی کہتے ہیں، یعنی جو دل کے خیالات ہوتے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے نیند کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، خوابوں کی تقسیم اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور دن اور رات کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں۔ اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ ابو ذرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا کوئی خواب سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر کرے گا وہی واقعہ پیش آ جائے گا۔ اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ انسان کو جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، لیکن صرف اس کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ حسد نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اگر وہاں بھی حسد کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہن بھائیوں سے بھی متعلق انسان سمجھتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، کہ آپ دیکھیں اس صورت میں آپ یہی تو پڑھنے جا رہے ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا۔ یا دوستوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اکٹھے ایک جگہ پر رہنے والوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے۔ تو پھر بہتر ہے کہ انسان کسی کو نہ بتائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرے۔
शुक्राने के तौर पर। और अगर बुरा ख्वाब देखें तो उसकी बुराई ताबीर से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए सदका कर दें कि अल्लाह इस ख्वाब की बुरी ताबीर से मुझे बचाना। जो दुआ बुरे ख्वाब को देखने के बाद पढ़ने को कहेगी वो औज़ुबिका मिन शर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ुबिका मिन शर्रिहा, यानी अल्लाह मैं मुझे इस ख्वाब की बुरी ताबीर से महफूज रखें। और ये पढ़ के आप 3 तरफ उतार दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई पसंदीदा ख्वाब देखे तो इसे बयान कर देना चाहिए और इसकी ताबीर भी ये वजाहत कर देनी चाहिए। यानी इस शख्स के लिए हिदायत है जो ख्वाब का मानी समझता हो। अगर कोई आपके पास आकर ख्वाब सुनाए, अगर अच्छा हो तो मतलब बताएं, अगर अच्छा ना हो तो खामोश रहें, और वजाहत कर सकते हो तो कर दें ताकि दूसरे को रहनुमाई मिल जाए। इसका ये मतलब नहीं कि हर ख्वाब हर एक को सुना दें, और इसका ये मतलब भी नहीं कि कोई ख्वाब किसी को भी ना सुनाए, क्योंकि इंसान के लिए जो जिस ख्वाब में जिस रहनुमाई है वो इससे महरूम रह जाएगा। लेकिन जिसको सुनाए वो काबिल एतमाद होना चाहिए, जो सच्चा हो, सच्चा इंसान साहिब इल्म हो और आपसे किसी किस्म का कोई खार ना रखता हो और आपके लिए बुरा ना चाहता हो। बुरा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए? अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता हो तो वो शैतान की तरफ से है, इसके शर से पनाह मांगे और इसका जिक्र किसी से ना करे तो वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है। बाज़ औक़ात इंसान ख्वाब में परेशान भी होता है तो फिर किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब का वाक़या जो है वो ख्वाब से शुरू होता है। लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलिन, हकीकत ये है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूँ शुरू होता है कि इनके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ़ और इसका भाई दोनों यानी बिन्यामीन, दो सगे भाई थे यूसुफ़ और बिन्यामीन, और बाकी 9 भाई जो थे उनकी दूसरी वालदा से थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो दूसरी वालदा थी वो उनकी खाला ही लगती थी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा के फ़ौत होने के बाद उनकी खाला से उनके वालिद ने याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह किया था। इस तरह 9 भाई जो है उनके खालाजाद भी हुए और उनके ये सौतेले भाई भी हुए और बिन यामिन इनके सगे भाई हुए। तो ये जो उनके भाई हैं 9 भाई, ये हमेशा ये हसद फील करते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये यूसुफ और इसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा महबूब है, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। सच्ची बात यह कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो ताकि इससे कहीं फेंक दो, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। पैगंबर की औलाद थे, नेकी और बुराई का फ़र्क समझते थे, जानते थे। लेकिन अब देखें कि शैतान किस तरह इंसान को वरगलाता है। याद रखिए, कोई शख्स कितना भी नेक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शैतान से महफूज नहीं है। शैतान किसी वक्त भी इसे फिसला सकता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहिए, हिफाजत की दुआएं पढ़ते रहिए। और ये भी बात है कि फिर नेक बन जाना ज़रूरी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बख्श दे, क्योंकि कुरान मजीद में आता है यगफिरु लिमन यशाउ, आले इमरान में, कि जिसे वो चाहता है उसे बख्शता है, जिस पर वो चाहता है उस पर करम करता है। तो इसलिए कभी भी इंसान को इस तवक्को से हम गुनाह नहीं करने चाहिए कि इसके बाद हम माफ़ी मांगेंगे और हमें बख्श दिया जाएगा। अपने गुनाहों से इंसान को डरना चाहिए, रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको हमारे अंदर से दूर कर दे। और यहाँ जो बात समझ में आ रही है वो ये कि हसद कितनी बुरी चीज़ है। खून का रिश्ता, इसमें भी रहम नहीं, और दूसरों की तरफ खुद पसंदी, अना, अपनी ज़ात की मोहब्बत, यहाँ मोहब्बत फ़ी ज़ात भी है कि हमें क्यों नहीं इतना चाहा जाता, कि हमारी क्यों इतनी अहमियत नहीं है जितनी यूसुफ की है। बस इस बात से ज़िद में आ गए, और इसके अलावा यूसुफ का कोई कसूर नहीं था। ये इनका कसूर था कि ये इनकी खुदाखदात सलाहियतें थी अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छा इखलाक और नेकी के मौके से फ़ायदा उठाने की वजह से, जिस वजह से वो बाप के महबूब बन गए थे। बाज़ औक़ात हम किसी को इल्ज़ाम देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को बहुत अहमियत देता है, और ये नहीं सोचते कि वजह क्या है इस अहमियत को देने की, किसके मंजूर नज़र बनने में इस शख्स का अपना इखलाक होता है। आपने देखा होगा बच्चों में से एक बच्चा दूसरे के मुकाबले में अपने अच्छे इखलाक की वजह से ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाता है माँ बाप की निगाहों में, और ये सब के साथ तजर्बा होता है। बहन भाइयों में से भी आप किन के ज़्यादा करीब होते हैं, जिनके साथ आपकी मोहब्बत होती है। ये एक दूसरे के मुश्किल वक्त में जो काम आते हैं और जो आपको नहीं पूछते, आहिस्ता आहिस्ता आपकी निगाहों से भी ओझल हो जाते हैं और आपके दरमियान ध्यान से भी उतर जाते हैं। तो हसद तो ये है कि जो इंसान के ईमान के मुनाफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। सुनन नसाई की हदीस है। हसद एक बीमारी है, दिल की बीमारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले की उम्मतों की बीमारी
तुम्हारे अंदर सरायत कर गई। और वो बीमारी हसद और बुग़्ज़ है जो मूंड देने वाली है। इससे मेरी मुराद बालों को मूंडना नहीं बल्कि दीन को मूंडना है। ये भी सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। तो इसलिए हसद से बचना चाहिए, क्योंकि ये हसद का सारा खेल जो है ये शैतान का फैलाया हुआ होता है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि हसद की वजह से काबिल ने भी अपने भाई हाबिल को मार दिया था। और हसद सबसे पहले शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था। आयत नंबर 10, काला काइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, इन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल ना करो। कहते हैं कि बड़ा भाई था, इसने मना किया। इस पर इनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला इसे निकाल ले जाए। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ को के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। कल से इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहला लेगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया ना फाड़ खाए, जबकि तुम इससे गाफिल हो। इन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते हुए इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था है, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। अब यहाँ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। झूठ कहते हैं कि दिल और जुबान के फर्क को, दिल में कुछ और है और जुबान से कुछ और कहा जा रहा है। तो वो बाप को बहला फुसला के यूसुफ को साथ ले जाकर कुएं में फेंकना चाहते थे। याद रखिए, इस किस्म के झूठ जिसमें धोखा भी शामिल हो, ये इंतहाई नुकसानदेह झूठा उज़र बहाने करके कहीं चले जाना, लोगों को राजी कर देना, ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बात करना और फरेब करना और जहालत की बातों को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। सही बुखारी की हदीस है। यानी जैसे रोज़ा भी रखा हो तो रोज़ा रख कर भी अगर कोई झूठ नहीं छोड़ता तो रोज़ा भी रखने का भी फ़ायदा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, किसी दिल में झूठ और सच इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह इस लायक नहीं है कि अल्लाह के इसके करने वाले को दुनिया में जल्दी सजा दे दे और इसके साथ साथ आखिरत में भी इसकी सजा जमा रखे, जैसे कि कता रहमी, खयानत और झूठ है। सही जामिया सगीर की हदीस है। यानी 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा बंदों को दुनिया में भी मिल जाती है। इनमें से एक झूठ भी है। बाज़ों का हम झूठ बोलकर एक चीज़ छुपाते हैं और अल्लाह ताला इसको खोल देता है और इंसान के लिए बेइज्जती की बात हो जाती है। तो इसलिए झूठ कभी भी फ़ायदा नहीं देता। तो इन्होंने झूठ बोलकर भाई को साथ ले लिया। आयत नंबर 15, इस तरह इसरार करके जब वो इसे ले गए तो इन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें। तो हमने यूसुफ को वही की कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र आ गया। ये अपने फेल के नताइज से बेखबर थे। तुम्हारे साथ जो हो रहा है इसका अंजाम बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर इसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हों। झूठे शख्स को कस्में खाने की जरूरत पेश आती है। जाऊ अला कमीसी बिदमिन कज़िब, वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर आए थे। ये सुनकर इनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान कर दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। इससे ये पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा हो गया था कि दाल में कुछ काला है, मामला कुछ और है। लेकिन इनसे बहुत ज्यादा खोद कुरेद भी नहीं की और इनके जाहिर पर मामला किया। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है, इखलाक देखिए, पैगम्बराना और जाहिर पर मामला करते हैं। याकूब का किरदार दिल को छू जाता है। किस तरह वो अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं, गम के मौके पर भी, दुख के मौके पर भी, यकीन के मौके पर भी। खुद किस तरह कायम रहे हैं सच्चाई पर, इखलाक की बुलंदियों पर, बच्चों के साथ क्या मामला कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल हर घर में पैदा होती है। इसके बाद हमारा क्या रवैया होता है, जिसका कसूर निकल आता है या नहीं भी पता होता, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी खूब बेइज्जती की जाती है, इससे बोलचाल छोड़ दी जाती है, इसके साथ शदीद नाराज़गी का इज़हार किया जाता है और इसके साथ रोना धोना और उसको शिकायत पूरे मोहल्ले को खबर दी जाती है और मामला हल नहीं होता। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, वल्लाहु मुस्तआनु, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह से मदद मांगूंगा, तुमसे नहीं, बंदों से नहीं। अल्लाह मुझ पर मामला वाज़ह कर देगा। उधर एक काफिला आया और उसने अपने सके को पानी लाने के लिए भेजा। सका जो होता है वो पानी तलाश करता है काफिले वालों के लिए। सके ने जो कुएं में ढोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। इन लोगों ने
इसको माल तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह इससे बाखबर था। आखिरकार इन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के एवज बेच डाला। इतना प्यारा बच्चा और नेक बच्चा थोड़ी सी कीमत में बिक गया। इंतहाई नाकदरी हो रही है, जाहिर बात है। और वो इसकी कीमत के मामले में ज़्यादा के उम्मीदवार ना थे, क्योंकि चोरी का माल था और वो चाहते थे कि जल्दी बिक जाए, बस जो मिलता है वो काफ़ी है। मिस्र के जिस शख्स ने इसे ख़रीदा, इसने अपनी बीवी से कहा इसको अच्छी तरह रखना। साथ ही साथ इन्ना माल उसरी युसरा, वहाँ नाकदरी हो रही है और यहाँ अल्लाह ताला ऐसे बंदे के हाथ में दे रहा है जो कदरदान है, और बीवी को भी कह रहा है कि तुम इसकी कदरदानी करना। بعید नहीं कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए इस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और इसे मामला फहमी की तालीम देने का इंतज़ाम किया। गोया एक ख़ास मकसद के लिए यूसुफ को वहाँ ले जाया गया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। बज़ाहिर भाइयों ने हसद का मामला किया, इनको कुएं में फेंक दिया, वो मिस्र के बाजार में बिके, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की प्लानिंग कुछ और थी। वो अजीज़ मिस्र जो वज़ीर ख़जाना था मिस्र की हुकूमत में, इसके घर में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ें सीखने के लिए इन्हें माहौल फराम किया गया जो इसके बगैर मुमकिन ना था। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून। अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं कि अल्लाह ताला अपने फैसलों को किस तरह नाफिज करता है। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतईनाहु हुक्मम व इल्मा। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया, और इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। ये भी जजा की एक किस्म है कि इंसान को इल्म और हिकमत नसीब हो। इंसान जब ज़िंदगी में मुशक्क़तें उठाता है, तकलीफ़ें सहता है और इस तरह मैच्योर होता है, तो ये भी बज़ाहिर लगता है कि किसी चीज़ के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला इसे किसी और काम के लिए पुख्ता कर रहे होते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो इस पर डोरे डालने लगी और एक रोज़ दरवाजे बंद करके बोली, आ जा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं, ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। यानी मेरे रब ने मुझे इतनी दूर इतना अच्छा ठिकाना दिया, इतना मोहसिन शख्स दिया जिसके घर में मैं रह रहा हूँ, और मैं ये हरकत करूँ कि इसी के घर में डाका डालूं। वो इसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी इसकी तरफ बढ़ता, अगर रब की बुरहान ना देख लेता, क्योंकि मर्द के लिए औरत एक बहुत बड़ा फितना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों पर कोई फितना औरतों से ज़्यादा नुकसान देने वाला नहीं छोड़ा। सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम से, दुनिया मीठी और सरसब्ज है और अल्लाह ताला तुम्हें इसमें खलीफा बनाने वाला है, बस वो देखेगा कि तुम कैसे अमाल करते हो, लिहाजा दुनिया से बचो और औरतों से बचो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों में था। और जो औरत के फितने का शिकार ना हो, इसके लिए खुशखबरी है कि वो क़यामत के दिन अर्श के साए तले होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो भी इस औरत की तरफ बढ़ जाता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेते। ऐसा हुआ ताकि हम इससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था, यानी अल्लाह के खास हिफाजत का इंतज़ाम किया। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ का कमीज खींच कर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने इसके शोर को मौजूद पाया, रंगे हाथों पकड़ी गई। इसे देखते ही औरत कहने लगी, अब ये देखिए किस कदर फरेब की बात है ना। कहती है, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरी घर वाली पर नीयत खराब करे, उल्टा इल्जाम लगा दिया। इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है। खुद ही सजा भी तजवीज़ कर दी कि वो कैद किया जाए या इसे सख्त अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने अपना दिफा किया। इस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने करीने की शहादत पेश की। करीने की गवाही यानी सरकमस्टांशियल एविडेंस, यानी जो मौके को की शहादतों से हासिल किया जाता है, कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से फटी हो तो औरत सच्ची और ये झूठा है, और अगर इसकी कमीज़ पीछे से फटी हो तो औरत झूठी और ये शख्स सच्चा है। जब यूसुफ शोहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज़ पीछे से फटी है तो इसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालाक चालें, और ए यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत तू अपने कसूर की माफ़ी मांग ले, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ गई है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बात सारे शहर में फैल गई, यानी वो वाकया जो घर के 7 दरवाजों के अंदर हुआ वो किस तरह निकल के पूरे शहर में आम हो गया, और इस पर भी वो शर्मिंदा नहीं हुई और डिठाई के साथ एक और प्लानिंग करने लगी। इससे ये भी पता चलता है कि मिस्र का जो आम माहौल था वो किस कदर ख़राब था और ज़िना को कोई बुरी बात नहीं समझा जाता था।
औरतों को इस बात पे एतराज़ नहीं था कि यूसुफ की बीवी जो है वो ज़िना करना चाहती है, बल्कि उनको एतराज़ ये था कि उसको नौकर ही मिला था, अपना मुलाज़िम ही मिला था। यानी वो फांसना चाहती थी तो किसी अमीर इंसान को या किसी बड़े इंसान को फांसती। बहरहाल वो भी डिटाई के साथ अब एक प्लानिंग करती है। औरतें क्या कह रही हैं कि मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है और हमारे नज़दीक तो वो एक सरी गलती कर रही है। इसने जो इनकी ये मकाराना बातें सुनी तो इनको बुला भेजा और इनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफ़त में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन इस वक्त के जब वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ को इशारा किया कि इसके सामने निकला। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और वो अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशा लिल्ला, ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। तो किस कदर डिटाई है, गलती पर गलती करते हुए भी शर्म नहीं आ रही और इसको साबित कर रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, दरअसल इसका हुस्न ऐसा है कि मैं मजबूर हूँ। तो क्या ये उज़र काबिल कबूल था? हरगिज़ नहीं। और बहुत से गलत काम करने वाले ऐसी ही बातें अपने दिल में रखकर अपने गलत अमल को साबित करते हैं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की मगर ये बच निकला। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके हक में गवाही भी आ गई। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील व ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। कितना ज़बरदस्त किरदार है। इमाम बुखारी के बारे में भी आता है कि एक दफ़ा एक शख्स के साथ सफ़र पर जा रहे थे तो बातों बातों में उन्होंने तस्करा कर दिया कि इनके पास 1,000 दिनार हैं सामान सफ़र के तौर पर। बहरहाल जब कश्ती में बैठे, कश्ती कुछ दूर गई तो जो इनके साथ सवार हुआ था, इसने को पता था कि इमाम बुखारी के पास 1,000 दिनार है। इसने शोर मचा दिया कि मेरा 1,000 दिनार चोरी हो गए। अब तलाशी शुरू हुई। अब इमाम बुखारी को फिक्र ये हुई कि अगर ये दिनार मेरे हैं और मेरे पास से निकलते हैं, जिसको ये झूठा आदमी अपनी मलकियत करार दे रहा है, तो ये तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाएगा, ख़यानत का इल्ज़ाम आ जाएगा। तो इन्होंने वो दिनार खामोशी से पानी में बहा दिए। जब इमाम बुखारी के तमाम मालो मता की पूरी तलाशी ली गई तो इनके पास से कुछ नहीं निकला। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो उस शख्स ने इमाम बुखारी से पूछा कि वो पैसों का क्या हुआ जो तुमने बताया था कि तुम्हारे पास थे? तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने पानी में बहा दिए, इस डर से कि कहीं मुझसे लोग हदीस रसूल इस वजह से ना लें कि ये झूठा शख्स है। यानी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस बुराई से निकलने के लिए, इस बुराई से बचने के लिए, क्योंकि वो एक औरत नहीं, सारे शहर की औरतें पीछे पड़ गई थी, तो किस किस से निपटेंगे? यार अब मुझे ही तू कहीं ले जा, समेट ले। और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा न किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शुमार रहूंगा। ऐसी हरकतें क्या हैं, जहालत पर मबनी हैं। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालें इससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दे। हालांकि वो इसकी पाक दामनी और अपनी औरतों के बुरे एतवार की सरी निशानियां देख चुके थे, जानते बूझते हुए कि कसूरवार कौन है, मुजरिम कौन है। लेकिन चूंकि वो तादाद में ज़्यादा थे तो इनको पकड़ने के बजाय एक बेगुनाह बेकसूर यूसुफ को पकड़ लिया गया और जेल में भेज दिया गया। वदहला माहू सिजना फतयान, कैद खाने में दो गुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। एक रोज इनमें से एक ने इससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, यानी निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा कि हमें हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म इन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है। वाकया ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत का इनकार करते, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए जिंदा के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिसकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं कि बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाओ इजाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा
کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے کسی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہے، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، حالانکہ وہ بے قصور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر کے ساتھ عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ قید خانے میں جو دو دوسرے آدمی آئے تھے، انہوں نے ان کی خوش اخلاقی کو، ان کے احسان کو، ان کی نیکی کو پہچان لیا۔ تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام ہی مناسب شخص نظر آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس بھروسے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر قائم کیا۔ ایک داعیے دین جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی اس کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر وہ گھر میں بھی جھگڑالو ہو اور باہر بھی ہر ایک سے جھگڑ رہا ہو تو وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ جب تک کھانا آتا میں اتنی دیر میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ کیونکہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور صحیح راستے کی پہچان کرائی۔ بس اتنی مختصر سی تبلیغ، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے۔ صرف سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، شرک کی نفی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یعنی عام طور پر تو موٹا پتلے کو کھائے گا لیکن کمزور کو، لیکن یہاں الٹا حساب تھا۔ اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے ان خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکالو اور باقی اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، یعنی ان کے چھلکوں میں رہنے دو۔ یہ اتنی زبردست ٹیکنالوجی تھی، ٹیکنیک تھی، کیونکہ اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو گندم یا چاول وغیرہ خراب نہیں ہوتے چاہے سالوں پڑے رہیں۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، ان زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف کو، یعنی یہ تعبیر سن کے، کیونکہ بادشاہ عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت ذہین اور سمجھدار ہے جس نے اتنے درست طریقے سے خواب کی تعبیر بتائی۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پیغمبر اپنی عزت و عصمت کو کیسے بچاتا ہے؟ یعنی اور کوئی ہوتا تو بھاگ کے جیل سے باہر نکلتا کہ شکر ہے میری جان چھوٹی، لیکن انہوں نے ایسے باہر جانا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میرے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے، اس الزام کو صاف کرو، اس کے بعد ہی میں یہاں سے نکلوں گا۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے؟ اس وقت جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بس بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ پہلے بھی اگرچہ کہہ چکی تھی مگر اب زوردار طریقے سے خود اپنے منہ سے بول کر یوسف کی تائید کی، اس کا تصفیہ کیا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि मेरे रब की किसी पर रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। तो किस तरह आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तदबीरें काम आती हैं। बज़ाहिर हालात कुछ नज़र आते हैं लेकिन इनकी हकीकत कुछ और होती है। एक चीज़ बज़ाहिर तकलीफ़देह महसूस होती है लेकिन इसका अंजाम बहुत अच्छा होता है, और कुछ चीज़ें बज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं और इनको अपने मकासद पूरे न होते नज़र आते हैं, जैसे बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, लेकिन इनका अंजाम बहुत भयानक होता है। तो अल्लाह ताला हमें चीज़ों की हकीकत समझा दे। अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्जुकना तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तिनाबा, आमीन। अल्लाह हमें सच्चाई को देखने वाला बना दे, सच्चा बना दे, सच्चों में शामिल कर ले और सच्चों का साथ देने वाला बनाए। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है, इंशाल्लाह यहीं से हम अगला पारा कल शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।